کراچی سے خیبر تک کے احوال میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور سب سے پہلے شامل کریں گے ہیڈ لائنز۔ گجرانوالہ میں خستہ حال مکان کی چھت گرنے سے ملبے تلے دب کر باپ 4 بچوں سمیت جاں بحق ہو گیا۔ خاتون خانہ کو انتہائی تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ رجحان پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں 2 ڈاکو ہلاک، دیگر ساتھی فرار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق مارے جانے والے ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے۔ چکوال کے علاقے ڈنڈوس میں گزشتہ روز فائرنگ سے جاں بحق ہونے والے مسلم لیگ نون کے 3 ورکرز کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ اراکین قومی صوبائی اسمبلی سمیت دیگر شخصیات کی شرکت۔ ملتان میں ایف آئی اے اہلکاروں کے روپ میں ڈکیت گھر کا صفایا کر گئے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ کبیروالا میں نجی اسکول کے ٹیچر نے بہیمانہ تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے 8ویں جماعت کی طالبہ کا ٹخنا توڑ دیا۔ والد نے پولیس کو درخواست دے دی۔ انتظامیہ کی جانب سے سنگین نتائج کی دھمکیاں۔ ملتان کے علاقے شالیمار کالونی کے رہائشی گزشتہ 2 ماہ سے گیس کی سہولیات سے محروم ہیں۔ اہل علاقہ سراپا احتجاج بن گئے۔ اٹک میں ون ویلنگ کی حوصلہ شکنی اور اس کے نقصانات کے بارے میں آگاہی فراہم کرنے کے لیے ٹریفک پولیس کی جانب سے واک کا اہتمام کیا گیا۔ حیدرآباد کے نواحی گاؤں میں 2 کمسن بچوں کی جبری شادی کی تقریب پر شعبہ ویمن ڈیولپمنٹ کی پولیس کی ہمراہ کارروائی۔ بچی کا والد فرار ہو گیا۔ پولیس بھی بغیر کارروائی کیے واپس لوٹ آئی۔ جیکب آباد میں بجلی اور گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف سینکڑوں افراد نے احتجاجی ریلی نکالی۔ مظاہرین کا بجلی اور گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا مطالبہ۔ بنوں میں سرکاری اسکول کے نہم اور دہم جماعت کے طلباء نے اپنے مطالبات کے حق میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ڈیرہ مراد جمالی میں انسپیکٹر جنرل آف پولیس بلوچستان کی سربراہی میں اجلاس، افسران سے امن و امان کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ آئی جی نے انتظامات کے بارے میں بریفنگ دی۔ اور آزاد کشمیر کے ضلع ہٹیاں والا کے شہر لیپا میں آتش زدگی، شدید برفباری کے باعث راستے بند ہونے سے ریسکیو عملہ نہ پہنچ سکا۔ 70 دکانیں، 7 مکانات سمیت 5 گاڑیاں جل کر خاکستر ہو گئی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، سب سے پہلے رخ کریں گے صوبہ پنجاب کا۔ سب سے پہلے خبر آپ کو دیں گے گجرانوالہ سے، جہاں خستہ حال مکان کی چھت گرنے سے ملبے تلے دب کر باپ اپنے 4 بچوں سمیت جاں بحق ہو گیا۔ خاتون خانہ کی حالت انتہائی تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ صنعتی شہر گجرانوالہ میں محنت کش تاج اپنے خستہ حال مکان میں سویا ہوا تھا کہ اچانک چھت گر گئی، جس کے نتیجے میں باپ تاج، اس کے بچے احد، فہد، نبیہہ، سحر اور اس کی اہلیہ ملبے تلے دب گئے۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں جائے حادثہ پر پہنچ گئیں اور امدادی سرگرمیاں شروع کر دی گئی۔ ملبہ ہٹایا گیا تو اس میں سے خاتون خانہ شدید زخمی حالت میں برآمد ہوئی۔ باقی افراد جاں بحق ہو چکے تھے۔ میتوں اور زخمی خاتون کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ جاں بحق بچوں کی عمریں 2 سے 7 سال کے درمیان ہیں۔
روجان पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग के तबादले में 2 डाकू मारे गए। रोजहान के इलाका घमानिल में गश्त के दौरान 15 डाकुओं ने पुलिस पर हमला कर दिया। हमले का मकसद पुलिस एहलकार अगवा करके अपने साथियों को रिहा करवाना था। कई घंटे पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला जारी रहा। 2 डाकू फरार होते हुए अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए, जबकि बाकी फरार होने में कामयाब हो गए। हलाक होने वाले डाकुओं की लाशें शेख खलीफा अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। और अभी आपको अहम खबर देंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रावलपिंडी में 9 साला बच्ची को जलाने के मामले का नोटिस दिया है। जस्टिस साकिब निसार ने आरपीओ और डीएचओ रावलपिंडी से 48 घंटे में रिपोर्ट भी तलब कर ली है। इसी बारे में मजीद अपडेट्स देंगे वसीम रज़ाक से। वसीम, बताइएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज जो है 9 साला बच्ची को घर के दरवाजे के पास खड़ी थी कि उसको जला पेट्रोल छिड़कर उनके जो मुखालिफ फरीक है उन्होंने जो पेट्रोल छिड़कर उसको जला दिया था और उस बच्ची की 50% जिस्म का हिस्सा वो जल गया है। आज क्योंकि तमाम खबरें कल मीडिया पे भी चली, अखबारात में भी खबर आई है, तो आज चीफ जस्टिस इस मामले का नोटिस लिया है और नोटिस लेते हुए आरपीओ रावलपिंडी और डीएचओ को 48 घंटे में रिपोर्ट तलब कर ली है। बच्ची इस वक्त होली फैमिली अस्पताल में एडमिट है और उसका 50% जिस्म का जो हिस्सा है वो झुलस चुका है और उसके साथ साथ आरपीओ को से 48 घंटों में आइंदा आने वाले 48 घंटों में रिपोर्ट भी तलब कर ली है। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने इस मामले का आज नोटिस लिया है। जी, चीफ जस्टिस से इस मामले का आज खुद नोटिस लिया। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया वसीम। आगे बढ़ते हैं। डस्का में मारूमूली तनाज़े पर मुसल्लह अफराद ने छुरियों के वार करके 2 हकीकी भाइयों को शदीद जख्मी कर दिया। डस्का के नवाही गांव के रिहायशी मोहम्मद बूटा का चांद गाड़ी में सवारी बिठाने पर जाहिद नामी शख्स से झगड़ा हो गया। अड्डे पर मौजूद लोगों ने मदाखलत करके मामला रफा दफा करवा दिया। शाम को जब सुलह के लिए गए तो उसी दौरान जाहिद उर्फ जैदी और इसके साथियों ने छुरी के वार करके मोहम्मद बूटा के 2 बेटों 26 साला रजा और 20 साला अली हुसैन को शदीद जख्मी कर दिया और मौके से फरार हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल लाया गया, जहां से उन्हें तशवीशनाक सूरत हाल पर गुजरांवाला अस्पताल रेफर कर दिया गया। दूसरी जानिब पुलिस ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी हैं, मगर ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। सियालकोट में 12 साला मसीही तालिबा के कत्ल के खिलाफ वरसा सरापा एहतजाज बन गए। इस दौरान मुश्तइल मुजाहिरीन ने बीएसई के तालिबे इल्म को तशद्दुद का निशाना बना डाला। समरियाल के स्कूल में ज़ेरे तालीम 12 साला तालिबा तानिया मरियम के कत्ल के वाक़ये का मुकदमा दर्ज न करने के खिलाफ वरसा ने सियालकोट प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाज करने वालों में मर्द व ख़वातीन शामिल थे। एहतजाज के बायस रोड कई घंटे तक ब्लॉक रही, जिससे ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। मुजाहिरीन के मुताबिक पुलिस ने तालिबा के कत्ल के वाक़ये को खुदकुशी करार दिया और मुल्जिमान को तलाश करने के लिए कुछ नहीं किया। इस दौरान मुजाहिरीन ने यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म को पकड़ लिया और उसे तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसे सहाफियों ने मदाखलत करके बचाया। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मुजाहिरीन को इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी करवाई, जिस पर मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। चौसईदन शाह के इलाके डंडोत में फायरिंग के नतीजे में कत्ल होने वाले 3 मुस्लिम लीगी वर्कर्स की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। चकवाल के इलाके डंडोत में गुज़िश्ता रोज फायरिंग से जाँ भाग होने वाले मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन यूसी डंडोत राजा माजिद यूसुफ और उनके भतीजे जीशान और काउंसलर तारिक महमूद की नमाज जनाजा उनके आबाई इलाके डंडोत में अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में मुस्लिम लीगी वर्कर्स, अवामी और समाजी शख्सियात के साथ साथ जिले भर से बल्दियाती नुमाइंदों और अराकीन कौमी और सूबाई ने शिरकत की। इस मौके पर रिक्कत आमेज मनाजिर देखने में आए और अवाम कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालिबा करते रहे। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के सदर राजा साजिद इकबाल ने कहा कि ये खुली दहशतगर्दी है, जिसका वजीर आला पंजाब को नोटिस लेना चाहिए। मकतूलीन मुस्लिम लीग नून के दरीना कारकुन थे। उनके कत्ल से लीगी कारकुनों में अदम तहफ़्फ़ुज़ की फिजा पाई जाती है। दूसरी जानिब मकामी पुलिस ने 4 नामजद अफराद के खिलाफ FIR का इंदराज करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। उधर मुल्तान में FIA एहलकारों के रूप में डकैत घर का सफाया कर गए। 5 मुसल्ला डाकू FIA एहलकारों का रूप धारकर एक घर में दाखिल हुए और अहले खाना को यरगमाल बनाकर नकदी और जेवरात लूटकर फरार हो गए। थाना BZU पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं और मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं।
गुजरांवाला में रिक्शा ड्राइवर को बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाने के मुकदमे का ड्रॉप सीन हो गया। रिक्शा ड्राइवर चांद शहजाद ने मुलजिम सब इंस्पेक्टर समीउल्लाह के हक में बयान रिकॉर्ड करा दिया। चंद रोज कबल सियालकोट रोड पर चिंची रिक्शा की टक्कर पर थाना सदर वजीराबाद में तैनात सब इंस्पेक्टर समीउल्लाह ने रिक्शा ड्राइवर चांद को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया था, जिस पर मुलजिम सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल करने के बाद थाना सेटेलाइट टाउन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। रिक्शा ड्राइवर ने जुडिशल मजिस्ट्रेट अली की मुद्दत में राजीनामा जमा करवाते हुए बयान दिया है कि उसका मुलजिम साथी के साथ राजीनामा हो गया है, इसलिए उसकी जमानत होने पर उसे कोई एतराज नहीं। मुलजिम इस मुकदमे में 3 फरवरी तक अबूरी जमानत पर है, जबकि अदालत ने मुलजिम समीउल्लाह के खिलाफ थाना जिना रोड के संगीन नताइज की धमकियों के मुकदमे में भी सब इंस्पेक्टर समीउल्लाह की 50,000 रुपए के मसलकों पर जमानत मंजूर कर ली है। मुलजिम धमकियां देने के मुकदमे में 14 रोज जुडिशल रिमांड पर जेल में कैद है। सियालकोट में सोतेला बाप 2 बेटियों को 4 साल तक दरिंदगी का निशाना बनाता रहा। शिकायत पर पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। 4 साल कबल मॉडल थाना कैंट के इलाके मोहल्ला दादू नगर के मेहनतकश विक्टर मसीह की वफात के बाद उनके भाई विल्सन मसीह ने अपनी भाभी से शादी कर ली। बाद अज़ां मुलजिम अपनी सौतेली बेटियों 25 साला स्टाफ नर्स ससा विलियम्स और उनकी साथी बहन को 4 साल से ज्यादती का निशाना बनाता रहा। ताहम आज स्टाफ नर्स की शिकायत पर पुलिस थाना कैंट ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे इलाका मजिस्ट्रेट ने 14 रोज जुडिशल रिमांड पर डिस्ट्रिक्ट जेल सियालकोट भिजवा दिया। SHO के मुताबिक तहकीकात जारी हैं और चालान जल्द अदालत में समाअत के लिए जमा करवाया जाएगा। कबीरवाला में निजी स्कूल के टीचर ने बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाते हुए 8वीं जमात की तालिबा का टखना तोड़ दिया। वालिद ने पुलिस को दरख्वास्त दी है। कबीरवाला के नवाही इलाके बस्ती इलाहाबाद की रिहायशी 8वीं जमात की तालिबा जो निजी स्कूल में जेर तालीम है, आज क्लास टीचर ने उसे बहिमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला, जिसके नतीजे में लारैब का टखना टूट गया। तालिबा ने इल्जाम आयद किया है कि शिकायत करने पर स्कूल इंतजामिया की जानिब से संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं। दूसरी जानिब मुतासिरा तालिबा के वालिद ने टीचर और स्कूल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए थाना सदर कबीरवाला में दरख्वास्त जमा करवा दी है। ताहम जिली इंतजामिया की जानिब से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। और अभी आपको खबर दें, पंजाब असेंबली के इजलास में हंगामा आराई हुई है। अपोजिशन की जानिब से एहतजाज किया गया है। अपोजिशन के अराकीन अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। अपडेट कर रहे हैं आपको आज के इजलास की कार्रवाई से मुताल्लिक। पंजाब असेंबली के इजलास में आज फिर हंगामा आराई हुई है और अपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया है। अपोजिशन के अराकीन अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए और शदीद एहतजाज करते रहे, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी करते रहे। पंजाब असेंबली के आज के इजलास के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, जिसमें आज फिर हंगामा आराई हुई है और अपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया है। अपोजिशन के अराकीन अपनी नशिस्तों पर खड़े हुए और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते रहे, एहतजाज करते रहे। इसी बारे में मजीद अपडेट्स देंगे मियां आसिफ से। जी मियां आसिफ, इस बात पे यार ये करारदाद पेश की थी, हुकूमत ने इनकार कर दिया कि हम ये ऑर्डिनेंस जी मियां मोहम्मद असलम इकबाल ने करारदाद पेश की थी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस के हवाले से, लेकिन जिसे मुस्तरद किया जाए, जिस पर स्पीकर ने उन्हें बात करने की इजाजत नहीं दी, जिस पर अपोजिशन ने शदीद हंगामा राई की, नारेबाजी की और साथ ही उन्होंने जो ईवान वॉकआउट कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मियां आसिफ। एक और अहम खबर आपको देंगे। पंजाब हुकूमत की सेहत की सहूलियात की फराहमी के दावे धरे के धरे रह गए। निश्तर अस्पताल मुल्तान में दाखिल मरीज मुनासिब सहूलियात ना मिलने की वजह से घर मुंतकिल हो गया है। अस्पताल इंतजामिया ने एम्बुलेंस भी मुहैया ना की, मरीज को गधा गाड़ी पर घर मुंतकिल किया गया है। इसी बारे में मजीद अपडेट्स लेंगे फरहान मलगानी से। फरहान, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब के सबसे बड़े अस्पताल निश्तर अस्पताल मुल्तान में जो है सहूलियात का फुकदान है। यही सूरत हाल जो है आज अफसोसनाक वाकया जो है वो ये देखने को मिला कि एक मरीज जिसको अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया और वो मरीज उसने जो है वहां पर सहूलियात की अदम फराहमी की वजह से वहां से उन्होंने डिस्चार्ज होना ही बेहतर समझा, तो उसको जो है एम्बुलेंस फराहम नहीं की गई और इस मरीज को जो है गधा रेडी के ऊपर जो है
अपने घर को जानिब मुंतकिल किया गया। और यही हाल जो है निश्तर अस्पताल के दीगर वार्ड में भी है, जहाँ पर स्ट्रेचर्स की कमी है, व्हील चेयर नहीं है, जो और मरीज जो है वो या तो उनके लवाहिकीन उनको अपने कंधों पर उठाकर जो है एक वार्ड से दूसरे वार्ड में मुंतकिल करते हैं, और या फिर जो है मरीज जो है उनको एम्बुलेंसेस फराहम नहीं की जाती। और वो इस किस्म की जो हतकमेज जो रवैया है, इंसानियत के साथ जो मजाक है, उनको गदागेड़ी पर और जो दीगर जो ज़राए हैं उन पर जो है अस्पताल से घरों को मुंतकिल किया जा रहा है। अस्पताल में सहूलियात का फुकदान है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया फरहान। और अभी आपको अपडेट करें, तहरीक इंसाफ के एमएनए शहरियार आफरीदी की रुकनियत बहाल कर दी गई है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। गोशवारों की तफसीलात जमा ना करवाने पर इलेक्शन कमीशन ने रुकनियत मुअत्तल की थी, जिसे अब बहाल कर दिया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, तहरीक इंसाफ के एमएनए शहरियार आफरीदी की रुकनियत को बहाल कर दिया गया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। गोशवारों की तफसीलात जमा करवा दी गई है उनकी जानिब से और इस पर इलेक्शन कमीशन ने उनकी रुकनियत भी बहाल कर दी है। साकिब विरक से मजीद अपडेट जी। साकिब जी, पीटीए के एमएनए शहरियार आफरीदी की जो कौमी असम्बली की रुकनियत बहाली का जो एक मसला था वो जब हल हो गया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनकी बहाली का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। सालाना गोशवारों की तफसीलात जमा करवाने पर जो है वो उनकी कौमी असम्बली की रुकनियत बहाल की गई, जो कि 15 अक्टूबर से जो है वो मुअत्तल थी। और अभी तक 19 सूबाई अरकान असम्बली ऐसे हैं जिनकी जो है वो रुकनियत मुअत्तल है, जिनमें पंजाब असम्बली के 2 MPs और सिंध असम्बली के 17 अरकान जो है शामिल हैं। और पीपल्स पार्टी की नुसरत सहर अब्बासी की भी रुकनियत जो है अभी ताहाल मुअत्तल है, जबकि पीटीए की जो एमएनए है शहरियार आफरीदी, उनकी रुकनियत बहाली का नोटिफिकेशन आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी कर दिया है। साकिब बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। कमालिया में सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ सैकड़ों अफराद हाथों में बर्तन उठाए सड़कों पर निकल आए। प्रेस क्लब कमालिया से कलमा चौक तक सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग और खुली एलपीजी की अदम दस्तयाबी के खिलाफ सैकड़ों शहरियों ने हाथों में चूल्हे और सिलेंडर उठाकर एहतजाजी रैली निकाली। एहतजाज के बायस चीचा वतनी और टोबा टेक्सिंग को जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। मुजाहिरीन का कहना था कि सारा दिन में सिर्फ 2 घंटे सुई गैस फराहम की जा रही है, जिसकी वजह से बच्चे बगैर नाश्ते के स्कूल जाने पर मजबूर हैं। उनका कहना था कि एलपीजी एसोसिएशन ने पिछले 4 रोज से पुलिस गर्दी की वजह से हड़ताल की हुई है, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलात और भी बढ़ गई हैं। एहतजाज 2 घंटे तक जारी रहा। बाद अज़ां मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। मुल्तान के इलाका शालीमार कॉलोनी के रिहायशी गुज़िश्ता 2 माह से गैस की सहूलियात से महरूम हैं। अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए हैं। इसी बारे में मजीद अपडेट्स देंगे एजाज तरीन से। एजाज बताइएगा इस मुतालिक। जी, सुई गैस न होने की वजह से शालीमार कॉलोनी के शहरी सरापा एहतजाज हैं। इनका कहना है कि 2 महीनों से इनके घरों में गैस नहीं आ रही, जिसकी वजह से वो अजियत का शिकार हैं। आज इन्होंने जो शालीमार कॉलोनी के मकीन थे, इन्होंने सुई गैस हुकाम का अलामती जनाजा भी निकाला और नारेबाजी भी की और मुजाहिरीन ने तवे और चूल्हे भी उठा रखे थे। इनका कहना था कि अगर शालीमार कॉलोनी की गैस बहाल न की गई तो वो बोसन रोड को मुकम्मल तौर पर बंद कर देंगे। उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये अपील की है कि खुदारा शालीमार कॉलोनी को फौरी तौर पर जो घरेलू सार्फिन है उन्हें गैस दी जाए ताकि वो अपने घरों में खाना बना सकें। उनका ये भी कहना था कि घरों में गैस न होने की वजह से जो होटल वाले हैं वो मुंह मांगे दाम वसूल कर रहे हैं। इसके साथ साथ एलपीजी फरोख्त करने वाले और लकड़ी माफिया जो हैं उन्होंने भी शहरियों की जेबों पर डाके डालना शुरू कर दिए हैं। इसलिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान को चाहिए कि वो फौरी तौर पर गैस जो है घरेलू सार्फिन को मुहैया करे। अगर इनके मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो वो एहतजाज का दायरा बढ़ाकर बोसन रोड को ब्लॉक कर देंगे। जी, एजाज तरीन मुल्तान से अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। तहसील बार कोट ओकला ने डीपीओ मुस्लिम पार्टियों को टफ टाइम देगी। उन्होंने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी जवानों को रोजगार देने और आवाम को सेहत और तालीम की बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए कोशां है। रुक करेंगे हैदराबाद का, जहां इंतजामिया की गफलत से कासिमाबाद कॉलोनी कचरे का ढेर बन गई। गंदगी और ताफुन से मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले रही हैं।
हैदराबाद में कासिमाबाद कॉलोनी की हालत जार इंतजामिया की नाअहली की तस्वीर पेश कर रही है, जहां जगह जगह गंदगी के ढेर लगने और सीवरेज की नाकिस सूरत हाल से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। गंदगी के ढेर लगने से मुहलिक इमराज फैलने का भी खदशा है। इलाका मकीनों का कहना है कि कासिमाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज की नाकिस सूरत हाल से इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदे बेखबर हैं। मुतादिद बार मतला करने के बावजूद किसी ने नोटिस नहीं लिया। ड्रेनेज का सिस्टम खराब है, सीवरेज सिस्टम खराब है, पानी नहीं है पीने का, बिजली का मसला, गैस का मसला। हमने इख्तियारों को बाकायदे हमने उनको बोला है, 10 मरतबा हम उनके पास गए हैं, लेकिन फिर भी वो हमारी नहीं मानते। कासिमाबाद की कदीम तरीन कॉलोनी में से ये एक कॉलोनी है जिसके आप हालात देख रहे हो। ये गंदगी के ढेर, ये पानी और रोड के हालात आप खुद देख रहे हो, रोड के क्या हालात हैं। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से मुतालिबा किया है कि फौरी तौर पर सीवरेज की नाकिस सूरत हाल को ठीक किया जाए और गंदगी के ढेर खत्म किए जाएं। जैकबाबाद के गवर्नमेंट बॉयज एलिमेंट्री स्कूल स्पेशल फोर्स की दीवार गिर गई, जिसके नतीजे में एक खातून जख्मी हो गई। जैकबाबाद के गवर्नमेंट बॉयज एलिमेंट्री स्कूल स्पेशल फोर्स की इमारत खस्ता हाली का शिकार है। आज स्कूल की बैरूनी दीवार बोसीदा होने के बायस गिर गई, जिसके नतीजे में राहगीर खातून जख्मी हो गई, ताहम तलबा महफूज रहे। स्कूल के हेडमास्टर सिकंदर अली खिलजी के मुताबिक ये वाकया उस वक्त पेश आया जब स्कूल में असेंबली हो रही थी कि अचानक स्कूल की दीवार बाहर की जानिब गिर गई, जिसके बाद बच्चों में भगदड़ मच गई। और हेडमास्टर का कहना है कि स्कूल की इमारत की खस्ता हाली से मुतालिक महकमा तालीम के आला अफसरान को तहरीरी तौर पर आगाह करने के बावजूद कोई अमली इक़दामात नहीं किए गए। इमारत की खस्ता हाली की वजह से बच्चों की हाजिरी में भी कमी वाक़ होना शुरू हो गई है। और अब रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का। बन्नू में सरकारी स्कूल के नहम और दहम जमात के तलबा ने अपने मुतालिबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा किया। बन्नू प्रेस क्लब के बाहर तलबा ने स्कूल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करते हुए स्कूल इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि वो नहम और दहम जमात के तलबा हैं, स्कूल इंतजामिया उन पर बेजा इल्जामात लगा रही है, आप स्कूल में इंतशार फैला रहे हैं। उनका कहना है कि आज वो स्कूल गए तो इंतजामिया ने उन्हें स्कूल से जबरदस्ती निकाल दिया। एहतजाजी तलबा का कहना था कि उनके इम्तिहानात सर पर हैं, इस वजह से उनकी पढ़ाई पर असर पड़ रहा है, जिसकी तलाफी कौन करेगा। और अब कुछ खबरें होंगी बलोचिस्तान से। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बलोचिस्तान एहसन महबूब ने कहा है कि दहशतगर्दी पूरे मुल्क का मसला है। डेरा मुराद जमाली में इंस्पेक्टर पुलिस के कत्ल में कलअदम तंजीम मुलव्विस है, उन्हें हर हाल में कानून के कटहरे में लाएंगे। सूबे में पुलिस और सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई कर रहे हैं। डेरा मुराद जमाली में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का बलोचिस्तान एहसन महबूब का कहना था कि डेरा मुराद जमाली में गुज़िश्ता रात पुलिस को टारगेट करने का ये तीसरा वाकया है। मेरे यहाँ आने का मकसद पुलिस फोर्स के साथ इजहार यकजहती और उनकी हौसला अफजाई करना है। उन्होंने बताया कि आज के इजलास में मकामी अफसरान के साथ अमन व अमान पर बात की गई ताकि ऐसे वाकयात का तदारुक किया जा सके। इंटेलिजेंस एजेंसीज और FC डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी राबिते में हैं। उनके हमरा सेक्रेटरी दाखिला बलोचिस्तान मोहम्मद अकबर हरफियाल भी मौजूद थे। इससे कबल IG बलोचिस्तान ने कमिश्नर हाउस डेरा मुराद जमाली में अमन व अमान के हवाले से एक आला सतही इजलास की सदारत भी की। इस मौके पर DIG नसीराबाद ने अमन व अमान के हवाले से किए गए इंतजामात के बारे में IG बलोचिस्तान को ब्रीफिंग दी। और अभी आपको हम खबर देंगे मेयो अस्पताल में महंगे दामों हार्ट स्टंट्स की खरीदो फरोख्त का मामला। FIA का प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट को खत। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं, इस खत की तफसीलात फराहम करने की हिदायत भी की गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको मेयो अस्पताल में महंगे दामों हार्ट स्टंट्स की खरीदो फरोख्त का ये मामला है। FIA का प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट को खत की तफसीलात फराहम करने की हिदायत कर दी गई है। मेयो अस्पताल में महंगे दामों हार्ट स्टंट्स की खरीदो फरोख्त का मामला है और FIA की से प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट को खत की तफसीलात फराहम करने की हिदायत की गई है। अली रजा से मजीद अपडेट्स देंगे। जी अली। जी बिल्कुल, चंद रोज कबल जो है मियां हॉस्पिटल में जो है
महंगे दामों खरीदो फरोख्त का मामला स्टंट्स का सामने आया था, जिसके बाद FIA हुकाम की जानिब से अब एक खत लिखा गया है प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट को, जिसमें ये हिदायत की गई है कि तमाम तर डिपार्टमेंट से जो है वो ताउन की यकीन दहानी करवाई जाए और इसके साथ साथ तमाम तर तफसीलात बताई जाए कि आया वो स्टंट्स महंगे दामों किन कंपनी से खरीदे गए थे और किन किन तारीख में खरीदे गए थे। ये तमाम तर तफसीलात जो हैं FIA हुकाम की जानिब से मांग ली गई हैं। जी बहुत शुक्रिया अली रजा। इसके साथ ही कराची से खैबर तक के हवाले से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप वक्त न्यूज़ के साथ रहिए।